Tripathi is coordinating this program and head of the chemistry department, and Dr. Pandey from Council of Science and Technology. He is doing lot of activity in Gorakhpur to take Gorakhpur as a science city. He develop Gorakhpur as a science city. So thank you very much for joining us in organizing this program. The other HOD deans of different faculties, head of the department, faculty members, and dear students. See, this day is very, very special day when our Prime Minister is talking about the Viksit Bharat in 2047, then how we should proceed in this direction. And today's theme is the use of indigenous technologies towards Viksit Bharat. And I think the science is the only way, and with which use of science and technology we can make our Bharat as Viksit Bharat. And I think the University of Gorakhpur is also contributing, giving good contribution in this direction. Our students have presented lot of good ideas to their models, and I congratulate all of them for this initiative. और आज हम सीवी रमन जी की डिस्कवरी को भी मना रहे हैं यहाँ, one of the greatest discovery in the field of science, and which do not have application only in physics or chemistry, which has application in almost all areas, including the medical sciences. It is used as diagnostic tools for many diseases, many more applications ranging from material science to biotechnology, many applications. And I will not discuss in detail about the applications of Raman effect, because you need series of lectures if we start discussing the different applications of Raman spectroscopy and applications. If we talk about the Viksit Bharat, and I already told you, मैंने पहले बात करी विकसित भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है और क्या भूमिका हम लोग देखते हैं। इसकी शुरुआत तो हम इस बात को देखते हैं कि जब हम गोरखपुर की ओर देखते हैं, जैसे हमारा प्लेनेटोरियम डेवलप हो रहा है, हमारी साइंस पार्क डेवलप हो रही है, और जैसे हमारी यूनिवर्सिटी डेवलप हो रही है, I see Gorakhpur city as a science city in future, and maybe we will have many more research centers here. The university will be the main place, main focus for the research, and it will promote the research to the other places also, to the colleges, to the maybe some other institution will come up with time, and the Gorakhpur will become a science city. जब हम साइंस की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा पहला क्षेत्र तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है। क्या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हम विकसित कर सकते हैं जो हम अपनी एग्रीकल्चर में ऑटोमेशन की हम बात करें? बहुत से स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किया मॉडल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एंड एग्रीकल्चर फैकल्टी इज द यंग वन, एंड दैट इज कंप्लीटिंग 3 years नाउ। और उसके साथ हम चाहेंगे कि विकसित भारत में एक बड़ा योगदान दें और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करें हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि सबसे अच्छा इमेजिनेशन और इनोवेशन तो यूथ में है, एंड वी हैव अबाउट 16,000 स्टूडेंट्स इन द कैंपस। तो ये जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसके बाद हमारे 2.5 लाख बच्चे करीब कैंपसेस में भी हैं, डिफरेंट कॉलेजेस में भी हैं, उनके साथ में मिलकर हम लोग क्या इनोवेशन कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो आज बहुत चीज़ें लेकर आए हैं कि जो हम पहले एक चिप भी हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, मोबाइल में हम इंपोर्ट करते थे, वो सब कुछ हमारे देश में बनना जा रहा है। चिप के लिए कंपनी बन रही है, बट यू नीड ट्रेन्ड मैन पावर उसके लिए, तो उस ओर भी हम लोग बढ़ रहे हैं। और हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हम लोग स्पेशल फोकस कर रहे हैं कि जो हमारी देश की रिक्वायरमेंट है उसमें हम कैसे बच्चे तैयार कर सकते हैं जो हमारे देश के विकास में अपना योगदान दें। अगर आप साइंस के डेवलपमेंट की बात करें, पिछले 50 साल का सफ़र देखें, ना केवल इंडिया का, बाहर का भी देखें, कंप्यूटर्स का साइज देखें, पहले सुपर कंप्यूटर होते थे, छोटे कंप्यूटर, नाउ विद द हेल्प ऑफ मोबाइल यू कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ स्मॉल कंप्यूटर। बहुत लोग तो मोबाइल खोलते हो, कंप्यूटर खोलते नहीं, और सब कुछ अपने मोबाइल से आज करने लगे हैं। एंड विद द टाइम, मे बी द टाइम विल कम, यू विल नॉट इवन नीड द मोबाइल, यू विल हैव जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑन योर पाम, और उस प्रोजेक्शन से ही आप सब कुछ कर लेंगे। आप अगर टीवी की बात करते हैं, टीवी का साइज पहले आपका टीवी आते थे जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, आज टीवी में आपकी LCD डिस्प्ले डिवाइसेस आई, LED आई, एंड आई सी द फ्यूचर ऑफ द टीवी कि आप केवल कोई डिवाइस ना होके केवल एक प्रोजेक्शन होगा जिसका रिजोल्यूशन बहुत हाई होगा, और उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं। ये बहुत से हम लोग स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं आज कि डिफरेंट सिटीज़ को स्मार्ट सिटी में डेवलप, एंड वी नीड स्मार्ट टेक्नोलॉजीज फॉर दैट। उसमें बहुत सारा स्कोप है काम करने पे, मटेरियल में बहुत सारा स्कोप है, और कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूव करने में बहुत सा स्कोप है।
and everything needs automation, in which the electronics and computers both will play a very very important role. And the University of Gorakhpur, the university started the program in both computer science as well as electronics. I think these two are very very important disciplines if we talk about the automation technology, which is one of the very important technology these days. और उसके अलावा इस डायरेक्शन में हम लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो कम्युनिकेशन भी बहुत फास्ट हो गया है। आपका कम्युनिकेशन केवल आपस तक सीमित नहीं है, इंटरनेट से तो आप पूरे विश्व से कनेक्टेड हैं, लेकिन आपका कम्युनिकेशन आज तो स्पेस के साथ भी हो रहा है कि आपका जब कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है या आपका स्पेस में जाता है, डिफरेंट मिशंस हैं, वहाँ तक आप अर्थ से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द अनदर एरिया इन विच आई थिंक द इंडिया इज डूइंग वेरी वेल। इसरो में हमारे बहुत से और काम हो रहा है एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी उसका एक पार्ट है हमारा ये। तो बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिसमें हम लोग काम करेंगे विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए। और आप लोगों को तो पहले बता भी चुके हैं कि आई सी अवर यूनिवर्सिटी एज ए लाइक वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर इन फ्यूचर ऑफ द पूर्वांचल एरिया। अभी हम लोगों को 100 करोड़ की फंडिंग मिली है एंड द मेजर पार्ट ऑफ दिस फंडिंग विल बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट more than 60 or 70 crore will be used only for developing research infrastructure in the university, which will be useful to our faculty members, our students, and not only to our students but also to faculty members of the nearby area of the Purvanchal area and the students of this area. तो हम लोग का जो काम है कि कोई भी फैसिलिटी जो हम इमेजिन कर सकते हैं रिसर्च के लिए चाहिए, एडवांस रिसर्च के लिए चाहिए या इक्विपमेंट चाहिए हैं, एक ऐसी सेंट्रल रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी हम लोग डेवलप करने की बात कर रहे हैं और उसकी ओर बढ़ भी रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, जिसमें सारे एरियाज के, चाहे वो फिजिकल साइंस हो या केमिकल साइंस हो या बायोटेक्नोलॉजी हो या डिफेंस हो, उनसे रिलेटेड जो फैसिलिटीज चाहिए हो हमारे स्टूडेंट्स को या पूरे पूर्वांचल क्षेत्र को, वो हम यहाँ पर डेवलप कर पाएँ। See, when I was in Lucknow we have large number of CSIR labs and many other national labs, many central universities, many laboratories, and लखनऊ को हम लोग कहते थे कि एक साइंस सिटी है हमारा, क्योंकि साइंस में चाहे वो बायोलॉजिकल साइंस की बात करें चाहे केमिकल साइंस की बात करें, यहाँ फिशरीज की बात करें, शुगर केन की, हर एक में एक नेशनल लेबोरेटरीज वहाँ पर थी। लेकिन पूर्वांचल क्षेत्र में और फैसिलिटीज भी बहुत सारी थी। वहाँ से आने के बाद जो मुझे थोड़ी कमी लगी, इस क्षेत्र में हमारे पास कोई ऐसी सेंट्रल फैसिलिटी या लैब नहीं है जो हमारे लोग यूज़ कर पाएँ या हमारे रिसर्चर्स को यूज़ कर पाएँ। उसको हम लोग बढ़ रहे हैं। तो देयर आर मेनी एरियाज इन विच वी कैन वर्क टू मेक एंड डेवलप द टेक्नोलॉजीज टू मेक अवर भारत एज विकसित भारत। और स्टूडेंट्स ने जो आज मॉडल प्रेजेंट करे हैं, आई थिंक द स्टूडेंट्स हैव वेरी गुड आइडिया, बहुत इनोवेशन है उनके अंदर। और हम लोग इस ओर भी बढ़ रहे हैं कि हम लोग ना केवल रिसर्च पेपर पब्लिश करें, हम पेपर्स को पेटेंट में कन्वर्ट करें, पेटेंट को हम टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करें और टेक्नोलॉजी को कैसे कॉमर्शलाइज कर सकें। ये हमारा अल्टीमेट एम है कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी रिसर्च आम लोगों तक कैसे पहुँचे और कैसे उसका फ़ायदा मिले। स्टूडेंट्स से तो हमेशा एक बात कहना चाहेंगे कि आसपास में देखिए कि हम आसपास की जो इश्यूज़ हैं उनको हम रिसर्च के माध्यम से कैसे एड्रेस कर सकते हैं और आम लोगों की लाइफ को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आज तो इतना इमेजिनेशन है, आज हम घर के इंटीरियर की बात करते हैं ना। आप यूएसए में देखें, कुछ नाम है, हम नाम तो नहीं लेंगे, कि घर के इंटीरियर में क्या यूज़ करते हैं, बहुत से वॉलपेपर यूज़ करते हैं, बहुत से टेक्सचर यूज़ करते हैं। नाउ देयर आर प्लेसेस इन विच यू कैन चेंज दिस डिज़ाइन एवरी डे। आप प्रोजेक्शन या एडवांस टेक्नोलॉजी में जो इंटीरियर है उसमें भी एक बड़ा चेंज आने वाला है। आप वॉल्स को केवल आप उसकी डिज़ाइन को अपने घर में हर दिन आप चेंज कर सकते हैं और एक नया इंटीरियर वहाँ पे ले सकते हैं। चाहे घर हो या कहीं ऑफिस हो, वहाँ पे आपका ऑटोमेशन की इतनी बात हो रही है कि सारी लाइट्स आपकी ऑटोमेटेड हो और आपकी रिमोट कंट्रोल से हो या आपके आने जाने से वो सेंस करके खुल पाए और बंद हो पाए। और आज बच्चों ने बहुत अच्छा मॉडल प्रेजेंट किया था कि हाउ यू कैन कंट्रोल ऑफ द टीवी बाय द मूवमेंट। दैट वाज वेरी इनोवेटिव आइडिया, वेरी इंप्रेसिव आइडिया। इस तरह के नए कुछ आइडियाज़ लेकर हम लोग आगे आएँ और बच्चों को हम लोग करें। और इंक्यूबेशन सेल को भी हम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जल्दी ही आप लोगों के कुछ स्टार्टअप अगर ऐसे हों, कुछ आइडियाज़ हो, उसको भी हम चाहेंगे कि हम रजिस्टर करें, उनको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर इसी के साथ साइंस डे की बहुत शुभकामनाएं। And I'm very much thankful to all the departments. I'm very happy to see the departments of psychology, geography, defense, and every department participated in today's exhibition. और जो बच्चों का जो एंथुसियाज्म था, हमारी जगह कम पड़ गई वहाँ पर। तो ये एक बात है गोरखपुर यूनिवर्सिटी की। हम हमेशा कहते हैं
कि यहाँ की स्ट्रेंथ है यहाँ के बच्चों का मोटिवेशन और उनका जो परसिवरेंस है किसी काम के लिए, वो हमेशा बहुत बहुत इसी के साथ अपनी यूनिवर्सिटी को हम लोग आगे ले जाएंगे। एंड वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू, योर टीचर्स आर देयर टू गाइड यू, टू मेंटर यू, एंड थैंक यू वेरी मच।